Yes, sir. Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, that is a wave optics, and in that chapter, we had completely discussed the interference and we had also learned about the diffraction. So in the diffraction, we had derived the conditions for the central maxima, minimas and maximas. So let us see who had remembered that condition. So the topic was a diffraction. So number one, anybody remember the condition for the condition for a central maxima? Diffraction angle will be 0. Exactly. So condition for the central maxima is a diffraction angle theta must be 0. So that is the condition for the that is the central maximum. Now second, anybody remember the condition for the minimas? Chalo. Theta will be equal to lambda. No, wrong answer. So condition for the minima is we are having a diffraction angle theta in such a manner that a sine theta should be equals to n lambda, where n start from 1, 2, 3 onwards. And start from 1 to 3 onwards, and a is what? A is a, anybody remember? It is a slit width of the slit. And चलो किसी को याद है condition for the maximas? 2n minus 1 lambda by 2. So a sine theta is equals to, wrong answer, 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1. Here it must be a 2n plus 1, because the very first maxima takes place when the a sine theta equals to 3 lambda by 2. So that is the first maxima, 3 lambda by 2. So n start from 1 to 3 and 2n plus 1 should be the condition. So these are the condition for the central maxima, minimas and maximas. Here you can see there are slightly opposite to the interference. Interference में क्या था? जब constructive interference हो रहा था. So what was the path difference for the constructive interference? मुझे बताओ constructive interference के लिए path difference क्या था? Constructive interference के लिए path difference क्या था? 2n lambda. n lambda. Constructive के लिए path difference n lambda था. तो वहां पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो था एन लैम्डा, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए नहीं है, यहाँ पे वो मिनिमा के लिए. देखो आप, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा इज द कंडीशन फॉर द मिनिमास, और वहां पे एन लैम्डा वाज द कंडीशन ऑफ द पार्ट डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था? तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऐसा था कि भाई पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n minus 1 lambda by 2. पाथ डिफरेंस वाज 2n minus 1 lambda by 2. That was the condition for the destructive interference. तो यहाँ पे उससे उल्टा है, यहाँ पे 2n plus 1 lambda by 2 is equals to a sin theta is the condition for the maximas. तो आपको सबसे पहले you have to find out whether the numerical is asked, whether it is in the based of whether it is based on the interference or diffraction. After that you have to start the solution. Otherwise there will be going to be different, you're going to be wrong over here. So you have to decide whether the question is based on the interference or diffraction, and after you should apply the condition. Is that clear, friends? Yes, sir. Okay, so I'm going to give you the screenshot of this. Okay, and now we are going to discuss the further questions. Question number 28, so far we had discussed in last lecture.
क्वेश्चन नंबर 28 को मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड करके सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में क्या है कि इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस एंगल। तो आपको पता है कि डिफ्रैक्शन में क्या होता था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे जो सेंट्रल फ्रिंज होगा, सेंट्रल मैक्सिमम होगा, उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। एंड ग्रेजुअली जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, तो एंगल बढ़ता जाएगा तो ऑनवर्ड्स आपको फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा मिलता जाएगा, तो उसका इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। और वो जो स्क्रीन के ऊपर के साइड जो होगा वही चीज स्क्रीन के ऊपर जो मिलेगा, स्क्रीन के वही साइड चीज आपको स्क्रीन के नीचे की साइड भी मिलेगा। मतलब दोनों साइड इंटेंसिटी का वेरिएशन सिमेट्रिक होगा, बीच में सबसे ज्यादा, एंड देन आफ्टर इट इज रिड्यूसेस विद एंगल इंक्रीजेस। देखो ये रहा आपका सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, एंड देन आफ्टर इट इज रिड्यूसेस दोनों साइड से। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। देखो, एंड देयर आर सम नोटवर्दी पॉइंट्स रिटन हियर, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आंसर रीड कर रहा हूं, देखो आप सुनना। इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द ग्राफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन वर्सेस डिफ्रैक्शन एंगल is shown in graph. From the graph it is said that the intensity of the central maxima is highest. Central maxima का intensity highest है. All minima having zero light intensity. Minima का intensity zero हो जाएगा, वो भी obviously है. The intensity of the maxima decreases with the increase in the angle of diffraction. Thus, intensity decreases as the order increases. And as well as the width of maxima is also decreases. The ratio lambda by a small, the diffraction will be less, and it is large for the larger value of the lambda by a. तो वो तो हमने रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट में नहीं था, बट मैंने आपको सिखा दिया था कि भाई लैम्बडा बाई ए रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना आपका डिफ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। डिफ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो स्प्रेड है, या इंटेंसिटी का जो स्प्रेड है वो आपको ज्यादा मिलेगा। लैम्बडा बाई ए रेशियो जितना कम होगा उतना आपका डिफ्रैक्शन भी कम रहेगा। वो मैंने आपको रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सिखाया था, वो आपके टेक्स्ट में नहीं है बट मैंने आपको वो सिखाया होगा। एंड अभी मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर में कि एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ अ स्लिट। वो मैं अभी प्रूव करके दूंगा आपको, अभी मैं उसको प्रूव करके दूंगा। चलो फ्रेंड्स, अब हमने इंटरफेरेंस भी डिस्कस किया है, डिफ्रैक्शन भी डिस्कस किया है, तो आपको मुझे कुछ उसके डिफरेंसेस बताना है। चलो आपके पास से मेरे को सुनना है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है कि राइट डाउन सम डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन और कंपेयर द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो कोई बताएगा? In interference, two sources are required, coherent sources, and in diffraction only one source is required. Okay, very good. I can say the interference, it is the effect produced by the two slits, two coherent slits. वहां पे 2 स्लिट थी, but diffraction is the effect produced by the different part of a single slit. उसमें एक ही स्लिट के अलग अलग पार्ट का सुपरपोजिशन हो रहा है, इसलिए वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होती है। So interference is the superposition of a 2 slits, while the diffraction is the superposition of the different part of a single slit. चलो ये बराबर है नंबर 1। नंबर 2 और कोई बताएगा? कोई? एनीबॉडी? Interference pattern. In the interference pattern, the intensity of every fringes are same. हाँ, उसमें सारे फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम होता है। While in the case of diffraction, the intensity of the central maxima is maximum, and then after intensity goes on decreases. चलो number 3, in the case of interference, the width of every fringe are same, while in the case of diffraction, the width of the central maxima is the maximum, and then after the width of the maxima decreases. वहां पे width सबका सेम था, यहाँ पे width डिक्रीज हो रहा है। नंबर 4, ऐसा कह सकते हैं, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है, याद रखना है कि in the case of interference,
the dark fringes are completely dark, वहां पे इंटेंसिटी 100% जीरो होता है, बट आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना वो टॉर्च वाला, तो आपको दिखाई देगा कि भाई जहाँ पे मिनिमा प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे 100% इंटेंसिटी जीरो नहीं है. So in the case of diffraction, the dark fringe is not completely dark, it is having some intensity. देखो, region of the minimas are not perfectly dark. Here the dark fringe is observed at the destructive interference. So friends, these are the differences between the interference and diffraction. It was already asked in the word examination. क्वेश्चन नंबर 31, इट इज फॉर एमसीक्यू. क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो देखो, ये आपको आज मैंने कराया 29 क्वेश्चन कराया, वो एमसीक्यू के लिए है. 30 आपको प्रिपेयर करना है. 31 जो है ना वो एमसीक्यू है के लिए है कि भाई रिचर्ड फिनमैन वाज द पर्सन, वो क्या बता रहा था. तो रिचर्ड फिनमैन ने ऐसा बोला कि वैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों एक ही चीज है, दोनों स्लिट के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, एंड दोनों में क्या होता है कि आफ्टर ऑल द सुपरपोजिशन ही होता है. सो एक्चुअली डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का फिनोमेनन एक ही है कि भाई वहां दोनों पे सुपरपोजिशन तो होता ही है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग सोर्सेज है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज है, तो जो फिनोमेनन डेवलप होगा वो इंटरफेरेंस है. बट एक ही सोर्स के डिफरेंट पार्ट है, अगर एक ही सोर्स के डिफरेंट पार्ट हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो ऐसा बताया था फिनमैन ने, तो वो यहाँ पे एज ए हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट देखना है. और ये यहाँ पे 32 क्वेश्चन जस्ट एक पैटर्न है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये जस्ट आपको नोट डाउन करना है, ये नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन करना ही नहीं है. 30 सेकंड को निकाल दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. 32 निकाल दो, उसको ज़रूरत नहीं है. 32 मत करो. 33 हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई एक स्लिट को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा. यंग्स Diffraction. कोई एक स्लिट को बंद कर देंगे तो इंटरफेरेंस डेवलप होने के बदले क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन. Diffraction. diffraction pattern is going to be generated, and in the diffraction pattern central maxima is having a largest intensity, having largest width as well. तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया. आपको 32 करना नहीं है एंड 34 भी नहीं करना है, वो 34 भी हमने डिस्कस कर लिया. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो अभी तो डिस्कस किया हमने. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, 31 एंड 34 आर सेम क्वेश्चन. देखो लिखा भी वही है, वो 3-4 पॉइंट वही के वही लिखे हुए हैं. तो 31 एंड 34 दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में सेम ही है और वही चीज वहां पे बताया गया है. तो कंपैरिजन बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वही रिपीट हो रहा है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, करो तो भी चलेगा, तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है. 35 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है. 35 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है. ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर विड्थ एंड द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर एंड लीनियर विड्थ आपको डिराइव करना है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. We wants to derive the formula of angular and linear width of a central maximum. So friends, let us, we are having a slit here. ये slit है हमारी. वैसे slit का width कितना होता है भैया, तो आपको पता है कि slit का जो width होता है वो a होता है, और ये इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, वहां पे अगर हम वहां पे स्क्रीन को सोचते हैं तो वो स्क्रीन पे एग्जैक्टली मिडल में क्या प्रोड्यूस होगा भैया, बताओ मुझे क्या प्रोड्यूस होगा. Central maximum. सेंट्रल मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला बताओ, ये कौन सा है. Can I say it is the first minima? Yes or no? Yes, sir. So can I say it is a developed central maxima is developed between the two first minimas?
यस और नो? Yes, sir. ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो फर्स्ट मिनिमा के बीच में होता है, दोनों साइड के। तो एक काम करते हैं, मैं ना फर्स्ट मिनिमा जिस एंगल पे फॉर्म हो रहा है वो एंगल में वो डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड कर दूं। फर्स्ट मिनिमा का अगर मैं डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड कर दूं और उसका डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट मिनिमा का डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करके उसका डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ मिल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया वो देखो। टू फाइंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर बट ये तो सॉलिड एंगल नहीं होगा। हम यहाँ पे व्हेन वी आर डिस्कसिंग एंगुलर विड्थ दैट इज इंडिकेटिंग अ टू डायमेंशनल एंगुलर विड्थ। ओके ओके, Yes, sir. we will apply condition for first minima. We will find angle for diffraction angle for first minima and double of it will give us, तो क्या मिलेगा? एंगुलर विड्थ ऑफ, बताओ क्या लिखो? Central maxima. सेंटर। चलो ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. चलो तो सबसे पहले कंडीशन किसका अप्लाई करना पड़ेगा? बोलो भैया। First minima. वेरी गुड, अप्लाई द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। चलो अब फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन किसी को पता है? N lambda. हाँ एन लैम्बडा, बट फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या होगा? 1 लैम्बडा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई ए, बट एज अ थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई ए। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि तो फिर एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा कितना है? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना है बोलो? उसको सपोज के अल्फा बोल देते तो अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 2 थीटा। कैन आई से इट इज अ 2 लैम्बडा बाई ए, बिकॉज ये थीटा प्लस थीटा विच कंबाइंडली फॉर्म द सेंट्रल मैक्सिमा। तो मुझे ये क्या मिल गया भैया? एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. अब मुझे मुझे और क्या फाइंड करना है? मुझे लीनियर विड्थ भी फाइंड करना है। तो मुझे है ना ये लीनियर विड्थ भी फाइंड करना है। ये लीनियर विड्थ मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो अब मैं है ना लीनियर विड्थ फाइंड करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आपको आर्क लेंथ फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एंगल इनटू रेडियस करना पड़ेगा भैया। एंड मान लो कि हमारा जो स्क्रीन है ना वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। वैसे हमने इंटरफेरेंस में भी स्क्रीन को हम कैपिटल डी डिस्टेंस पे ही ले रहे थे। तो चलो आर्क लेंथ, इसको मैं बीटा 0 बोल देता हूँ। आर्क लेंथ से बीटा 0, तो बीटा 0 इक्वल्स टू एंगल दैट वाज अ 2 थीटा इनटू द रेडियस। चलो रेडियस कितना लिखूं मैं? चलो बोलो। D. कैपिटल डी। D. तो आपका हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई ए इंटू कैपिटल डी। तो फ्रेंड्स मुझे ये क्या मिला भैया?
Linear width. ये मुझे लीनियर विड्थ, तो ये जो मिला वो एंगुलर विड्थ था सेंट्रल मैक्सिमा का। दिस वाज अ एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज अ लीनियर विड्थ। तो फ्रेंड्स अभी ये प्रूव हो गया कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है ना वो स्लिट विड्थ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जो दिख रहा है, मैंने बताया था कि मैं प्रूव करके दे रहा हूं अभी। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है ना वो आपके स्लिट के विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। देखो अपॉन ए आ रहा है, तो विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ अ स्लिट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है एज ए 2 और 3 मार्क्स। इज इट ओके? तो फ्रेंड्स फॉर द कंपैरिजन आपको ये भी याद होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस, याद है किसी को? इंटरफेरेंस में फ्रिंज क्या था? फिर से बोलो। Lambda into capital D upon small d. वेरी गुड, तो ये याद रखना है भैया। और यहाँ पे ये जो फ्रिंज विड्थ के जो फॉर्मूला है वहां पे स्मॉल डी क्या है? वहां पे स्मॉल डी क्या है? Split width. नहीं 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 नहीं, गंदी बात, वहां पे स्लिट विड्थ नहीं है। वहां पे स्मॉल डी है ना, वो दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पे जो ए है ना डिनोमिनेटर में ए, दैट इज अ स्लिट विड्थ। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, Sir. sir. तो फ्रेंड्स ये थ्योरी के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अभी लेने वाले हैं हम। 2 क्वेश्चन है वैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको, वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं भेज दूंगा। ये सेम ही मेथड है, मेथड सेम ही है। देखो आप देख सकते हो कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ फाइंड करने के लिए फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, फिर उसका एंगल फाइंड करके उसका डबल किया हुआ है। अच्छा, कंडीशन अप्लाई करके नहीं बताया है, कंडीशन बताना चाहिए। ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बताना चाहिए, फिर उसके बाद जाके थीटा पता चलेगा ना आपको, तो बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। तो ये 2 थीटा जो मिला आपको सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ मिला, और इसको फिर एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, तो ये जो मिला आपको लीनियर विड्थ मिल गया। सो ये आपका लीनियर विड्थ मिल गया। ओके, और ये पूरा निकाल दो, ये लीनियर विड्थ का सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल दो। ये टॉपिक कैंसल है, ये है ही नहीं टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं है टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, तो ये टॉपिक नहीं है। ओके ओके तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ आपको प्रिपेयर करना है, और बाकी सारे मैक्सिमा जो है उसके विड्थ को जरूरत नहीं है, वो नहीं है फ्रेंड्स। और एक चीज आपको अगर देखना है इंटरफेरेंस, सॉरी डिफ्रैक्शन आपको देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जिसके द्वारा आपको ये एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा आप डिफ्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं। देखो वैसे हमको पता है कि जो लाइट वेव्स होते हैं ना, लाइट वेव, उसका डिफ्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वो हमने लास्ट, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, लाइट वेव का डिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, लाइट वेव का डिफ्रैक्शन बहुत ही कम रहता है। बट अगर आपको लाइट वेव का डिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस करना है तो आप एक चीज कर सकते हो। देखो आप लैम्डा तो चेंज नहीं कर सकते हो, लैम्डा तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो? आपको पता है कि जो डिफ्रैक्शन होता है ना, डिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई ए रेशियो। अब आप लैम्डा तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिफ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए स्लिट के विड्थ को कम कर सकते हो। अगर स्लिट विड्थ जितना कम होगा ना, स्लिट विड्थ, इतना आपको डिफ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। चलो ये बात बराबर है, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखो।
देखो मेरे ये आपके पास यू हैव अ 2 फिंगर्स राइट, आपके पास ये 2 फिंगर्स है, तो एक फिंगर को आप ऐसे साथ में रखो, तो दोनों फिंगर के बीच में कहीं पे थोड़ा गैप मिलेगा आपको, यस और नो? आपके 2 फिंगर के बीच में आपको एग्जैक्टली बहुत छोटा सा गैप मिलेगा, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? Yes, sir. अब आप एक काम करना, वो जो गैप है ना वहां से कोई भी लाइट सोर्स मतलब ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है उसके सामने रख के वहां से ट्यूबलाइट या बल्ब मतलब लाइट सोर्स को देखने का ट्राई करो। तो ऐसे दो आपके 2 फिंगर के बीच में एक टाइप का स्लिट मैंने जनरेट किया, एक स्लिट मैंने जनरेट किया और स्लिट का विड्थ बहुत ही कम है, और मैं क्या करूंगा उसको आंख मार के एक आंख बंद करके मैं ना उसको कोई लाइट सोर्स के सामने रखूंगा और वहां से उसको देखने का ट्राई करूंगा। तो आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको वहां पे फ्रिंजेस दिखाई देंगे, आपको ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे, आपको ऐसे डार्क एंड ब्राइट लाइंस आपको दिखाई देगा। दिख रहा है क्या? ऐसा देखो तो, एक आंख बंद करके शांति से देखो तो आपको इस टाइप का एक पैटर्न दिखाई देगा, दोनों ये फ्रिंज विथ ये जो आपका स्लिट है ना उसमें से देखा, दिखाई दे रहा है क्या ऐसा कुछ? સર એટલે આમાં બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ દેખાશે ને? हाँ ब्लैक एंड व्हाइट देखा सर, હા दिख रहा है क्या? હા સર बंद करके एक आंख बंद करके शांति से देखो, कोई भी लाइट सोर्स के सामने रखो या आप सनलाइट के सामने भी रख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको जो मिल रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द विच फिनोमिनन? डिफ्रैक्शन। आया बात समझ में फ्रेंड्स? યસ સર तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया कि भाई ऐसे 2 फिंगर को उसमें से जो स्लिट बनता है तो वो स्लिट के द्वारा आप ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंट है, आपके पास रेजर ब्लेड होगा, तो ये 2 रेजर ब्लेड के बीच में देखो ये बहुत ही कम गैप रख के यहाँ पे स्लिट जनरेट किया है, और वहां से भी अगर आप देखते हो लाइट सोर्स को तो भी आपको इसी टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। तो ऐसे ये रेजर ब्लेड का यूज करके भी आप डिफ्रैक्शन देख सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है ना, दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ऐसे 2-3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, मैंने आपको ऑन द स्पॉट कराया ये एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 36 तक आपके कंटेंट में है। उसके बाद टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप एंड पोलराइजेशन के टॉपिक है जो आपके कंटेंट में नहीं है, बट एक टॉपिक फ्रेनल डिस्टेंस है आपके कंटेंट में, बट वो फ्रेनल डिस्टेंस जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 ये 4040, तो ये 40 क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद में कराता हूँ, बट उसके पहले डिफ्रैक्शन के बेस पे जो न्यूमेरिकल है ना वो हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिफ्रैक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल्स जो है ना 2-3 न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे हैं, देखते हैं। ओके देखो इलस्ट्रेशंस नंबर 1 2 3 4 हमने कर दिए है राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 मैंने करा दिया है, 5th इलस्ट्रेशन शायद बाकी होगा। यू शुड कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो illustration number 1 2 3 and 4th we had completed। अब 5th illustration के न्यूमेरिकल का डेटा आपके क्वेश्चन में है, देखो तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, क्या है? इन द एग्जाम्पल 10.3 what should be the width of each slit to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern? देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ सिंगल स्लिट। तो ये सिंगल स्लिट का मतलब क्या हुआ? कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? ये कौन सा फिनोमेनन हुआ? Diffraction. डिफ्रैक्शन। तो ये सिंगल स्लिट का मतलब हुआ डिफ्रैक्शन। तो इन दिस width how many width of the maxima of the double slit experiment? So 10 maxima of a double slit. डबल स्लिट के मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? फ्रिंज। तो width of a 10 फ्रिंज, इसका मतलब हुआ width of a 10 फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा का width इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स इंटरफेरेंस के 10 फ्रिंजेस। तो सेंट्रल फ्रिंज का width कितना होता है भैया? अभी हमने प्रूव किया, डिराइव किया, 2 लैम्बडा कैपिटल D by A। एम आई राइट फ्रेंड्स? ये सेंट्रल मैक्सिमा का width हुआ, एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. So in this particular region, how many fringes should be accommodated for the double slit? बोले तो 10, but double slit experiment का जो fringe है उसका length कितना है, width कितना है? लैम्बडा D by D है, am I right friends? Yes, sir. तो लैम्बडा डी दोनों सी जगह से कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा 2 by A इज इक्वल्स टू 10 by D। तो मुझे है ना क्या फाइंड करना है? मुझे स्लिट विड्थ फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। मुझे स्लिट का विड्थ मतलब मुझे ए फाइंड करना है। तो एक और सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स D by 10, मतलब ये दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये D दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में। तो हमारे स्लिट विड्थ कितना आ जाएगा? 1/5 मिलीमीटर, मतलब 0.2 मिलीमीटर इज द आंसर। चलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज इसके अंदर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों का कंसेप्ट यूज होता है। ये न्यूमेरिकल के अंदर इंटरफेरेंस भी आ गया, डिफ्रैक्शन भी आ गया, दोनों के विड्थ का यहाँ पे मेंशन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जो ये डिफ्रैक्शन के बेस पे डिपेंडेंट है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करा दिए हैं, 6 तक करा दिया है, 7th बाकी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक इज ऑल्सो डन, मतलब हो गए। तो ये 7 हो गया ना एक्सरसाइज का फ्रेंड्स? इज इट डन? સર 7 વાળો हाँ एक्सरसाइज का 7th ના સર પહેલા 6 જ થયા આઈ ગેસ ना ना थी अच्छा हो गया है। ये भी हो गया है ना सेंट्रल, ये इंटरफेरेंस है तो हो गया होगा। क्या है कि नहीं किया है? हो गया है सर, हो गया है ना 7th? 7th हो गया है। हाँ परफेक्ट। तो फ्रेंड्स अभी है ना, देखो आपके जो अभी गुजरात बोर्ड के कंटेंट है उसके अंदर इतने ही न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 and 7, एक्सरसाइज के 1 to 7 and 10।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 हमने कर दिए, एक्सरसाइज का 1 to 7 हमने कर दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना, वो फ्रेजनल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी मैं फ्रेजनल डिस्टेंस का थ्योरी अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद ये दोनों न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स कम टू दैट थ्योरी, फ्रेजनल डिस्टेंस। सर मतलब ये लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स का पूरा? कह सकते हैं। वैसे टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के रिजोल्विंग पावर एंड पोलराइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है ये टॉपिक, बट अभी वो बोर्ड में से ओमिट कर दिए हैं, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये सिलेबस खत्म होने के बाद मैं उसको भी मैं पूरा अच्छे से आपको डिस्कस कर दूंगा। उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा कि उसमें आपको क्या क्या एज ए लर्न बाई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग से। तो वैसे एज पर द गुजरात बोर्ड एंड एनसीआर, जो सीबीएसई वाले बच्चों को भी ये टॉपिक निकाल दिया है अभी तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे फ्रेजनल डिस्टेंस खत्म होने के बाद सिलेबस खत्म होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम करेंगे उसको इसके हिसाब से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, यस सर। so let me complete the last question, that is a Fresnel distance. Here it is. तो वैसे ये फ्रेजनल डिस्टेंस है क्या? तो फ्रेंड्स ये ऐसा डिस्टेंस है कि जहां तक आप रे ऑप्टिक्स को अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन सर के क्या मतलब क्या हुआ इसका, कि ये ऐसा डिस्टेंस है जहां तक आप रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या हुआ इसका? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फ्रेजनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस टिल यू फॉर विच you can apply the ray optics, but still it is not clear what is meaning of saying. तो मैं आपको बताऊं क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, देखो यहां पे मान लो कि स्लिट है आपका, फ्रेंड्स सोचो कि आपके पास एक टॉर्च है और टॉर्च के द्वारा आप है ना वॉल को एलिमिनेट कर रहे हो, टॉर्च के द्वारा वॉल को एलिमिनेट कर रहे हो, मतलब वॉल के ऊपर टॉर्च आपको स्टार्ट कर रहे हो। तो वैसे अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड है, रे ऑप्टिक्स वैलिड है का मतलब अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ही जा रहा है, तो फिर आपका टॉर्च का जो लाइट है, टॉर्च के द्वारा जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो कितने पार्ट में होनी चाहिए? टॉर्च के द्वारा इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कितने पार्ट में होनी चाहिए? सिर्फ टॉर्च के सरकमफ्रेंस। तो सही बात है, तो कि भाई टॉर्च का जो सरकमफ्रेंस है, टॉर्च का जो एज है सर्कुलर, उसके एग्जैक्ट सामने आपका स्प्रेड होना चाहिए, आपके इंटेंसिटी होना चाहिए। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो चलो मान लो कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली इसी हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है ना, वो मान लो कि आप इसी हिसाब के आपका सेंट्रल मैक्सिमा डेवलप हो रहा है, कि वो एग्जैक्टली क्या है, कि वो एग्जैक्टली आपका जो स्लिट है उसके सामने की साइड वो डेवलप हो रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड है। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए रे ऑप्टिक्स वैलिड है। ये डिस्टेंस में है ना, उसको z बोल देता हूं, चलो ये डिस्टेंस को। बट आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप टॉर्च को दूर ले जाते हो, टॉर्च को जितना दूर ले जाते हो तो आपके जो वॉल के ऊपर जो स्प्रेड मिलता है वो बढ़ता जाता है। तो एक्चुअली वो टॉर्च के सामने का पार्ट जो है ना वही इंटेंस होना चाहिए, उसके बदले आपको बहुत सारे जगह पे इंटेंसिटी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रे जो है वो बेंट हो गए, रे स्ट्रेट पाथ में जाने के बदले वो बेंट होके आगे बढ़े। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर।
तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अब हम वहां पे रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे हमको डिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो जो डिस्टेंस था जहां पे हमको सामने दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली सामने की साइड एग्जैक्टली सामने की साइड सेंट्रल मैक्सिमम दिखाई दे रहा था, तो उस डिस्टेंस तक स्क्रीन स्लिट से शुरू करके, मतलब सोर्स से शुरू करके स्क्रीन तक का वो डिस्टेंस जो है ना, वहां तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, वेव। वेव ऑप्टिक्स। चलो ये बात पता चली आपको प्रैक्टिकली। यस। तो अब मैं है ना वो डिस्टेंस फाइंड करने का ट्राई करूंगा। तो मैं है ना इसके लिए फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन लगाऊंगा। तो फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा। फॉर फर्स्ट मिनिमा what is the condition, friends? n lambda. D sin theta is equals to 1 lambda. So sin theta is equals to lambda by d के नहीं, d नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? સર આ કોઈ બીજા કલર થી લખો ને દેખાતું નહીં બરાબર. नहीं देखा तू? ओके હા સર. ओके अभी दिखाई दिया? યસ સર. For first minima, a sin theta is equals to 1 lambda. So sin theta is equals to lambda by a, but sin theta is approximately theta. So theta is equals to lambda by a. चलो ये पता चला। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर स्प्रेड मिला, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो मुझे ये बताओ कि लीनियर स्प्रेड कितना होगा। तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो फ्रेंड्स आर्क लेंथ शुड बी इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो लीनियर स्प्रेड कितना हो जाएगा, तो ये जो जहां पे हमको ये फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है उसका लीनियर स्प्रेड कितना हो जाएगा। तो लीनियर स्प्रेड अगर आपको फाइंड करना है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल इनटू द रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस मैंने क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, मैंने z लिखा हुआ है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे अभी, z थीटा। तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई a इंटू z, थीटा के बदले लैम्डा बाई a। एम आई राइट फ्रेंड्स? हाँ तो बोल दो। યસ સર. बट हमको पता है कि फ्रेजनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस, फॉर अ फ्रेजनल डिस्टेंस हमको ये पता है कि ये जो फ्रेजनल डिस्टेंस फॉर अ फ्रेजनल डिस्टेंस दिस linear spread, this linear spread should be having width is equals to देखो ये width कितना होना चाहिए, सामने सामने मतलब slit width, it should not be more than slit width. Am I right friends? યસ સર. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि that must be compare with the a only। तो अगर z को आप सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई लैम्डा, और इसी डिस्टेंस को ZF बोलते हैं। तो ZF इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। तो अगर आपका स्क्रीन इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वहां पे आप रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, हो या नहीं हो?
अगर आपके स्क्रीन का डिस्टेंस इससे ज्यादा हो गया तो आप रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, तो वही तो मैं बता रहा हूं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेसनल डिस्टेंस? सो आई कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेसनल डिस्टेंस इज वी कैनॉट अप्लाई the ray optics beyond this distance, because after this distance who is having a more effect than the ray optics? इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा उसके बाद Wave optics. वे ऑप्टिक्स का। सो आई कैन से ray optics can be applicable only up to this distance. Beyond it wave optics can be applied. तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा चीज आपको समझ में आया भैया? ये फ्रेसनल डिस्टेंस की पूरी थ्योरी समझ में आई आपको? यस सर। सर एक अगर लीनियर स्प्रेड थी समझा हमें। हाँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले एंगुलर स्प्रेड फाइंड कर दिया, राइट, फर्स्ट मिनिमा का। तो मैंने एंगल तो फाइंड कर दिया, यहां तक समझ में आया आपको ये एंगुलर स्पीड? यस सर। तो उसका मुझे अगर लीनियर स्पीड फाइंड करना है, लीनियर स्पीड, तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क फाइंड करने के लिए, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल इंटू रेडियस करना पड़ेगा। यस सर। तो एंगल तो हमारे पास है थीटा, एंड रेडियस कितना हो जाएगा? सोचो यहां से आपका कॉम्पास से ऐसा सोचो, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। यस सर। तो ये पता चला आपको, जेड थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई, यहां तक चला, पता चला? यस सर। ये क्या मिला? ये जहां पे हमारा फर्स्ट मिनिमा डेवलप हो रहा है, जहां पे फर्स्ट मिनिमा डेवलप हो रहा है उसका स्प्रेड मुझे मिला, राइट। तो वो जो स्प्रेड है ना, वो एग्जैक्टली ये स्लिट के सामने आना चाहिए, तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो प्रॉपर स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। ओके, और उसी डिस्टेंस को फ्रेसनल डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी फ्रेसनल डिस्टेंस पे ही स्क्रीन को रखा हुआ है, तो अब जाके मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो z है ना, वो ऐसा है कि बिकॉज ऑफ दैट दिस स्प्रेड मस्ट बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। इज इट ओके? सर खबर ना पड़ी। नहीं, देखो मैंने क्या फाइंड किया, ये ऐसा डिस्टेंस मुझे मिला कि जहां पे फर्स्ट मिनिमा डेवलप हो रहा है, मतलब ऐसा कह सकता हूं कि मैंने फर्स्ट मिनिमा का स्प्रेड, मतलब जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर दिया। अब हम कर क्या, देखो मेन आपके एम से भटक गए हो आप। आपका एम क्या है? तो आपका एम ये है कि हमें रे ऑप्टिक्स कहां तक अप्लाई करना है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक आप टॉर्च का एक्सपेरिमेंट करो, टॉर्च को आप वॉल के सामने रखो, तो टॉर्च का जो पार्ट है उसी पार्ट का वहां पे आपको इंटेंसिटी मिलना चाहिए, उसी विड्थ का। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो लाइट रेज है ना, वो सीधे पाथ से जा रहा है। बट अगर थोड़ा दूर जाओगे ना, आप टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्प्रेड है ना, वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेज जो है ना, वो स्ट्रेट जाने के बदले थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, मतलब वो क्या हो गया? डिफ्रैक्शन हो गया। तो अगर मुझे रे ऑप्टिक्स अप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए कि जितना सोर्स है, सोर्स का विड्थ जितना है, उसी विड्थ का वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम होना चाहिए। ये समझे आप? हाँ यस सर। तो अगर आपके स्लिट का जो विड्थ है, उसी विड्थ का अगर सेंट्रल मैक्सिमम वहां पे डेवलप हो रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वहां पे रे ऑप्टिक्स वैलिड है, बिकॉज रे सीधे पाथ पे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी ऐसा ही फिगर ड्रॉ किया है कि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो स्लिट के विड्थ का जितना हो गया। तो अभी मैंने उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया। तो ये पता चला आपको अभी? हाँ सर। तो और फिर जाके मैंने z फाइंड किया। अब मैं उल्टा बोलूंगा, अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये z ऐसा डिस्टेंस है कि जिसके लिए मैं रे ऑप्टिक्स अप्लाई, मैंने क्या किया, पहले रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर दिया और फिर z फाइंड किया। अब मैं उल्टा बोलूंगा कि भाई z ऐसा डिस्टेंस है कि जहां तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके ज्यादा अगर डिस्टेंस करेंगे तो क्या होगा, तो वो सेंट्रल मैक्सिमम का स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो फिर हम वहां पे ऐसा कह नहीं सकते कि ये रेस जो है वो सारे सीधे पाथ पे ही जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते फिर, तो रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं होगा फिर। इज दैट क्लियर? यस सर।
तो अभी ये थ्योरी आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो बोले ए स्क्वायर बाई लैम्बडा है। और उसका इंपोर्टेंस क्या है, तो इंपोर्टेंस ये है कि ये डिस्टेंस तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हमको रे ऑप्टिक्स अप्लाई करना है तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है ना डिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा डिफ्रैक्शन फिनोमिनन का, तो वेव ऑप्टिक्स का वेव ऑप्टिक्स का वहां पे इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो आपको ये दो चीज याद रखना है, क्वेश्चन प्रिपेयर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीज याद रखना है। एक तो डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो बोले ए स्क्वायर बाई लैम्बडा, ए स्क्वायर बाई लैम्बडा। और दूसरी चीज ये क्या बता क्या रहा है, तो ये बता ये रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वहां तक हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये दो चीज आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो वहां पे ऐसा ही प्रूव, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि अपर्चर साइज ऑफ द स्लिट इज ए, तो पहले डायरेक्टली यहाँ पे देखो थीटा फाइंड कर दिया, फिर जेड थीटा किया, फिर जेड का फॉर्मूला ए स्क्वायर बाई लैम्बडा किया, फिर क्या बोला गया, देखो जेड का फॉर्मूला ए स्क्वायर बाई लैम्बडा प्रूव किया, फिर क्या ही किया ये देखो ये सुनने लायक है। दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर द डिस्टेंस मच स्मॉलर देन ZF, अगर ZF से कम है तो कोई टेंशन नहीं है, तो spreading due to the diffraction is smaller compared to the size of the beam. Hence, spreading due to the diffraction dominates over that due to the ray optics. It shows that the ray optics is valid for that particular point. तो ZF से कम डिस्टेंस है तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पे रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट है, बट लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तो कौन डोमिनेट हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसके बेस पे एक आध दो न्यूमेरिकल्स है वो फटाफट देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज का 10th न्यूमेरिकल पहले लेते हैं। देखो क्या है 10th न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है, देखो तो एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं ऐसा डिस्टेंस फाइंड करो। अपर्चर मतलब स्लिट लेंथ आपको दिया हुआ है 4 है, एंड वेवलेंथ फॉर लैम्बडा मतलब 400 है, तो जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा। ए स्क्वायर बाई लैम्बडा, ए के बदले यहाँ पे डी सिंबल यूज किया है तो डी स्क्वायर बाई लैम्बडा। इज दैट क्लियर? तो 40, तो अप टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस वी कैन अप्लाई रे ऑप्टिक्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? And come to the question number 7, illustration number 7. Okay. देखो क्या लिखा है भैया, चलो कराने की जरूरत है। For what distance is the ray optics is good approximation? For the aperture width is a 3 millimeter and the wavelength lambda is equals to 500 nanometer. Once again, it is the same question. Am I right, friends? जरूरत है कराने की, देखो तो। नो सर। नो सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स वाइज कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप लोग कंपल्सरीली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कंपल्सरीली ये जो सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू मैंने आपको दिए हुए हैं उसको कंपल्सरीली सॉल्व करके लाना। आप लोग एक काम करना, पोलराइजेशन, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ये 3 टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन मत करना। पोलराइजेशन, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, उसके सिवा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना, वो 3 टॉपिक के रिगार्डिंग ना करना। तो यहाँ पे हमारा जो अभी का जो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रिपरेशन है वो टॉपिक हमने खत्म किया। ट्यूसडे को वापस से मिलेंगे बोर्ड के लेक्चर में। कल परसों आपका कल आपका JEE का सेशन, नीट का सेशन 7:30 बजे एज पर द शेड्यूल है। एंड आपका एक संडे एग्जाम भी है, वो एग्जाम के अंदर ये पूरा चैप्टर थ्योरी न्यूमेरिकल्स ओनली विल बी टेकन। संडे आपको एग्जाम देना है। ये चैप्टर फ्रेंड्स आराम से आपको मार्क्स देगा, 11 मार्क्स का वेटेज है आपका, आराम से आपको मार्क्स देगा ये चैप्टर। प्लीज डू प्रिपेयर दिस चैप्टर, कम टॉपिक्स है, आराम से मार्क्स मिल सकते हैं।
तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।